हैं। फंसे हुए यात्रियों का पैसा अब तक वापस नहीं आया है। लोग अपने सामान के इंतजार में हैं और इधर नरेंद्र मोदी की सरकार 4 लोगों की एक कमेटी बनाकर दिखा रही है कि वो इस संकट का हल निकालने में लगी है। वैसे कल कांग्रेस ने इस संकट के तार बीजेपी को मिले चुनावी चंदे से जोड़े हैं। कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया था कि इंडिगो एयरलाइन ने भाजपा को भारी चंदा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि इसी वजह से मोदी सरकार ने एविएशन सेक्टर में इंडिगो को वर्चुअल मोनोपोली यानी एकाधिकार दी है। इसका खामियाजा देश के नागरिक भुगत रहे हैं। कांग्रेस सांसद और प्रवक्ता शशिकांत सेंथिल ने बताया है कि चुनावी बॉन्ड की खरीद में के रिकॉर्ड बताते हैं कि इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब ने करीब 36 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और वहीं इसके प्रमोटर राहुल भाटिया ने भी लगभग 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और सेंथिल का दावा है कि इनमें से ज्यादातर बॉन्ड भाजपा ने भुनाए। आइए जरा सेंथिल को सुन लेते हैं। अंग्रेजी में उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुन लीजिए। मतलब यही है कि किस ढंग से यहां इंडिगो से आप अगर पैसे लेते हैं तो इंडिगो की मनमानी चलेगी और आप सुनते रहिए, सहते रहिए। इंडिगो के हिसाब से यानी एक एयरलाइन की मोनोपोली के हिसाब से आप अपने नियम और कायदे बनाते और बदलते रहिए। यही चल रहा है, सुनिए जरा यहां। So we are putting today a set of direct questions to the government. The first question to the government is, why has the BJP government in the last 11 years allowed aviation to shrink to a monopoly and a duopoly instead of building a competitive, diverse sector? Today also we saw other airlines could manage things. They had implemented the same FDTL rules, but they had managed it. If there was fair competition in the market, there will be players who will take up the space. And this is the first question, that why did you allow this monopoly, duopoly to develop in this sector? Second question is, why did the DGCA fail to ensure Indigo complied with this FDTL rules, which was released in 2024 and partially implemented from July 2025 and fully on November 2025? Did the government ever issue any warning or compliance notice to Indigo? Or was the airline protected from this enforcement altogether? This is something the government should answer. By this time, they would have come out with their notices and what they did to make Indigo comply. I don't think there is anything in place, and that is the reason why the government is not even responding. Third question. Given these electoral bond disclosures that we saw massive purchases by Interglobe group entities and its promoter, is the BJP's financial proximity to Indigo the real reason behind this extraordinary leniency shown at the cost of passenger safety? We have been always saying this electoral bonds is a very, very, very dangerous thing. It will allow corporates to run their show, and this is one example how this has happened. The fourth question that we want to ask is, will the Union Aviation Minister, Mr. Ram Mohan Naidu, take responsibility for this unprecedented crisis? Will he even apologize for the people of this country for not performing or not making the airline comply, or continue hiding behind generic, meaningless statements while passenger remains stranded in these airports? So these are the 4 questions that the Congress party wants to ask very clearly to the sector, and these electoral bond disclosures are there for anybody to see, and we really hope that such issues don't happen in the future. And this is a warning. This is just a warning in one sector. This is going to happen in every other sector if these monopolies continue to grow, and if the government and corporate nexus is going to continue in this country, and if opposition voices are stifled in many ways, and you just run the roost without any question being asked to you, this is also an indicator of what the country will face in the coming days to come. राहुल भाटिया ने 20 करोड़ और इंटरग्लोब जो कंपनी है इंडिगो की, उसने खरीदे 36 करोड़ रुपए और इसमें से मैक्सिमम पार्ट बीजेपी ने भुनाए हैं, यानी बीजेपी के खाते में गए हैं। अब इस आरोप का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने सबसे पहले मोनोपोली के आरोप सरकार पर लगाए थे, और आज नहीं बल्कि 2 साल पहले। उसके बाद लगातार राहुल गांधी इस मसले पर बात कर रहे हैं, मोनोपोली और डुओपोली की बात कर रहे हैं, जिस पर
नागरिक उड्डयन मंत्री ने जवाब दिया है, एविएशन मिनिस्टर ने जवाब दिया है कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि जनता से जुड़ा हुआ मामला है और इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सरकार उड्डयन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। कहां क्या काम कर रही है वो तो जनता देख रही है। कमाल करती है दोस्तों बीजेपी। उसे राहुल गांधी के आरोपों पर ऐतराज है, लेकिन राहुल गांधी भी तो जनता की तकलीफ देखकर ही सवाल कर रहे हैं। क्या अब बीजेपी के लिए विपक्ष का सवाल करना भी राजनीति है? और अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए बीजेपी काम कर रही है, कंपटीशन बढ़ाने के लिए बीजेपी काम कर रही है, तो वो जमीन पर नजर क्यों नहीं आता है? जमीन पर तो यह नजर आ रहा है कि कैसे आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले प्राइवेट एविएशन जो कंपनियां थी वो कितनी थी आप याद कीजिए। गो एयर, किंगफिशर और बहुत सारी जेट एयरवेज, उसके बाद आप ये इंडिगो भी उसी जमाने में। तो ऐसे बहुत सारी एजेंसियां थी, अलग अलग एविएशन कंपनियां थी जो धीरे 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 खत्म हो गई। एयर एशिया यहीं पर थी, स्पेस जेट स्पेस, स्पाइस जेट, माफी चाहूंगा, स्पाइस जेट, ऐसे बहुत। कहां हैं वो? अब तो सिर्फ 2 हैं, एक इंडिगो और दूसरी एयर इंडिया जो टाटा के पास है। 60 to 65% शेयर इसी मार्केट का इंडिगो के पास और 30 से 36% शेयर इसी मार्केट का टाटा के पास, यानी एयर इंडिया के पास। तो हो गया 60 और 36, 96%, 4% बाकियों के पास। चलिए, जैसी मर्जी वैसे चल रहा है। कुछ भक्तगण हैं, उनको मजा आ रहा है, कह रहे हैं इसमें मोदी जी का कोई दोष नहीं है। अगर सरकार की नीयत समाधान निकालने की होती तो पिछले 6 दिनों से यही तमाशा न चल रहा होता। वैसे मोदी सरकार के काम का तरीका यही है दोस्तों, लोग परेशान होते रहते हैं और वो इधर उधर की बातों में उसे उलझाए रखती है। अभी फ्लाइट्स नहीं चल रही है, ट्रेनों में मारामारी है, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम नहीं हो रहा, रुपए की हालत में सुधार नहीं है। आप देख लीजिए 90 के पार रुपया है। लापरवाही के कारण बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग अकाल मौत मर रहे हैं। गोवा में कल रात को क्या हुआ आपने देख लिया, 25 लोगों की जान चली गई। गोवा में सरकार किसकी है? अगर किसी और की सरकार होती तो अब तक अफरा तफरी का आलम रहता, तो तमाम टेलीविजन चैनल्स उसी के बारे में खबर दिखाते रहते। लेकिन सुबह से लेकर अभी तक आपने कितनी खबरें देख ली गोवा में जो हुआ है। लेकिन सरकार इस समय पाकिस्तान के सामने खुद को मजबूत दिखाकर घमंड कर रही है। यहां की जब बात हो सीधे पाकिस्तान की बात करो, और वो भी मामला, वहां से भी मामला ना समझे तो नेहरू पे चले आओ। लेकिन पाकिस्तान के सामने खुद को मजबूत दिखाकर घमंड आखिर क्यों दिखा रहे हैं? क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? दरअसल आज ही देश के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ के कार्यक्रम में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना अभी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने संयम और धीरज दिखाया। किसने रोका था? आपके टेलीविजन चैनल्स ने तो कह दिया था कि लाहौर इस्लामाबाद सब हम जीत चुके हैं, सुबह चाय पिएंगे लाहौर में और नाश्ता करेंगे इस्लामाबाद में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि हमारी सेनाओं ने आतंकियों के साथ क्या किया, यह कह रहे हैं राजनाथ सिंह। बहुत अच्छी बात है, हम चाहते तो हम भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेना ने न सिर्फ बहादुरी दिखाई बल्कि संयम भी बरता। उन्होंने सिर्फ उतने ही हमले किए जितना जरूरी था। बहुत अच्छी बात है, जान माल की क्षति नहीं हुई, आपने इसका ख्याल रखा, हमारी सेना ने ख्याल रखा, सल्यूट है हमारी सेना को। लेकिन राजनाथ सिंह जी, बात यह है कि यहां जो लोग परेशान हो रहे हैं एयरपोर्ट्स पे, जो लोग परेशान हो रहे हैं अभी कुछ दिन पहले बिहार जाने वाली ट्रेनों में जब छठ का समय था, उनके लिए तो आपने ट्रेनें नहीं चलवाई, लेकिन वोट देने के लिए आपने 6-6 गाड़ियां चलवा दी स्पेशल। पर जो कह रहे हैं राजनाथ सिंह साहब, बिहार चुनाव तो निपट चुका है, फिर अचानक ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र छेड़ने का मतलब फिर से जनता का ध्यान भटकाना है। क्लियर है यहां पे रहा सवाल। यकीन के साथ कह सकती है कि 26 लोगों की निर्मम हत्या के बाद उनके परिजनों को उसने इंसाफ दिला दिया ऑपरेशन सिंदूर से? अगर नहीं तो फिर इस संयम को बरतने की राजनीति क्या है? क्या ट्रंप के दबाव में सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका था? क्योंकि अब तक ट्रंप यही दावा कर रहे हैं, एक नहीं बल्कि 56 बार। 56 इंच सीने की बात करते थे नरेंद्र मोदी, और 56 बार वो कह चुके हैं उधर डोनाल्ड ट्रंप कि मेरे कारण इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध था उसे रोका गया, और मैंने फोन किया नरेंद्र मोदी को। बहरहाल अभी मोदी की जगह राजनाथ सिंह ने जुमलेबाजी का विभाग संभाल लिया है, ऐसा लगता है। अभी कुछ दिन पहले सरदार पटेल और नेहरू के बारे में राजनाथ सिंह ने दावा किया था कि बाबरी मस्जिद को जनता के धन से नेहरू बनाना चाहते थे, लेकिन पटेल ने उन्हें रोक दिया। इस झूठ पर
कांग्रेस ने सबूत मांगे थे तो राजनाथ सिंह की जगह सुधांशु त्रिवेदी आ गए। सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर कहा था कि राजनाथ सिंह ने जो कहा उसका स्रोत सरदार पटेल की अंदरूनी कहानी मणिबेन पटेल की डायरी है। मणिबेन पटेल एक्चुअली सरदार पटेल की बेटी हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि इस किताब के पृष्ठ संख्या पेज नंबर 24 पर लिखा है कि नेहरू ने भी बाबरी मस्जिद का सवाल उठाया था, लेकिन अब बीजेपी के इस झूठ का भी पर्दाफाश हो गया है। दोस्तों, आप 24 नंबर पेज बता दिए, सब कुछ ले आए। जयराम रमेश ने दावा किया है कि रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए झूठ फैला रहे हैं। जयराम रमेश ने एक पुस्तक का हवाला दिया है। पुस्तक के प्रासंगिक पृष्ठों के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए, पहले उस स्क्रीनशॉट को ले आइए, उस किताब के साझा करते हुए एक्स पर चलिए क्या लिखा है ये आपके सामने रख रहा हूं। इंग्लिश में है, हिंदी में यहां पर ये किताब का ये जो देख रहे हैं आप, उसी किताब का, ये चूंकि ये किताब गुजराती में है, उसी किताब के इस पेज को यहां रखते हुए जयराम रमेश लिख रहे हैं अपने ट्वीट में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी 2025 द्वारा प्रकाशित सीए आर.एस. पटेल की किताब, सीए हैं आर.एस. पटेल की किताब पुस्तक समर्पित पदछायो सरदारनों समर्पित पदछायो सरदारनों में पृष्ठ संख्या 212-213 पर गुजराती में मणिबेन पटेल की मूल डायरी प्रविष्टि यहां दी गई है। अभी जो आप देख रहे थे उसको ले आइए जरा, उस किताब के उस मूल, ये जो किताब है समर्पित पदछायो सरदारनों, ये जो किताब है इसके 212 नंबर 213 नंबर में ये उनकी ही ये उनके उससे लिखा हुआ गुजराती में मणिबेन की मूल डायरी की को यहां लिया गया है, मेन जो डायरी है, और उसमें जो कहा गया, जो कुछ कहा गया है, जो राजनाथ सिंह और उनके साथी प्रचारित कर रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर है। ये वो बात नहीं है जो राजनाथ सिंह कह रहे थे, वो नहीं है। कांग्रेस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की डायरी का हवाला देते हुए यह भी कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में झूठ फैलाने के लिए उन्हें, यानी राजनाथ सिंह को, उनकी सरकार को माफी मांगनी चाहिए। खैर, बीजेपी दोस्तों, आप जानते हैं बीजेपी तो झूठ फैलाने पर माफी मांगने अगर बैठ जाए तो उसे न जाने कितने साल इसी काम में लग जाएंगे, क्योंकि नेहरू जी या उनके परिवार या कांग्रेस या संविधान या इतिहास, इन सब को लेकर कहे गए झूठों की एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है, और हर दिन इसमें इजाफा होता ही जा रहा है। तो आप कितने दिन तक इस झूठ पे माफी मांगेंगे? लेकिन झूठ के पांव नहीं होते, यह भी कहा जाता है, और वो एक ना एक दिन धराशायी हो ही जाता है। यही हो रहा है, सामने प्रमाण है, सामने प्रमाण है। बहुत कुछ है दोस्तों आज इस चर्चा में, बहुत कुछ है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और सवाल ये कि क्या अब बीजेपी के धराशायी होने यानी पस्त होने के दिन आ गए हैं? क्योंकि अब जनता ही नाराज दिखने लगी है। विपक्ष खोल रहा है पोल अलग अलग ढंग से, और इन सबके बीच कैसे पस्त हो रहे हैं नरेंद्र मोदी, पस्त हो रही है मोदी जी की सरकार। यहां पर ये जो गुजराती में उसका हिंदी में पढ़ दे रहा हूं। यहां कह रही हैं, लिख रही हैं, मैं तो मानता था, या लिखा हुआ है यहां पर, मुझे पता था कि सोमनाथ लेने से पहले उन्होंने जूनागढ़ लिया था। सरदार पटेल की बात लिखी जा रही है। मुझे पता था सोमनाथ लेने से पहले उन्होंने जूनागढ़ लिया था, फिर उन्होंने जूनागढ़ सरकार से जमीन ली और एक ट्रस्ट बनाकर 30 लाख रुपए जमा किए। मैंने मुंशी और पंडित जी को पत्र लिखा, पंडित जी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू, पत्र लिखा कि सरकार इस पर पैसा खर्च न करे, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। मैंने मुंशी जी को पत्र लिखकर कहा कि अगर वे इसे लिखेंगे तो ये एक ट्रस्ट होगा जिसके अध्यक्ष जज साहब होंगे और आप सदस्य होंगे, और वो सरकार से कोई पैसा नहीं लेंगे। तब वे चुप रहे, लेकिन ये सवाल मथुरा, बनारस और कलकत्ता में उठाया गया। ये बात यहां लिखी जा रही है जो यहां है, और इसके आगे भी है, ये 2 पन्नों में है पूरा का पूरा एक संदर्भ, एक छोटा सा एक हिस्सा आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसको यहां पर लाकर जयराम रमेश ने रखा है। लेकिन बात यहां यह है कि आखिर झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? झूठ आखिर इस वक्त क्यों? आप कभी पाकिस्तान, कभी आप जवाहरलाल नेहरू का नाम लेने लगते हैं, नेहरू, गांधी, पाकिस्तान, इन सब से बाहर निकलते ही नहीं हैं, और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सिंध कब्जे में कर लेंगे और पीओ के कब्जे में कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है, सब कुछ कब्जे में कर लीजिए, लेकिन ये दुनिया कब्जों से नहीं चलती है। लगभग 100 साल हो जाएंगे अब 2033 में हिटलर के
हिटलर के शासन की शुरुआत 1933 में हुई थी जर्मनी में। 1933 से 1945 का दौर सबने देखा है। उस दौर में जीने वाले लोग अगर नहीं देखा है तो हम आप जैसे लोग जो उस दौर में पैदा नहीं हुए थे, कम से कम हम लोगों ने पढ़ी हैं किताबें, तो उस दौर को जानते हैं। 100 साल हो जाएंगे, लेकिन 100 साल बाद भी क्या हम उसी दौर में जी रहे हैं? यहां तो यही दिखाई देता है। जब सड़कों पे, जब बाजारों में, जब रेलों में यानी ट्रेनों में, आप जब बसों में या हवाई जहाज में कहीं भी आप सुरक्षित नहीं है, कहीं भी आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, तो फिर सरकार कर क्या रही है? जब आप सवाल करेंगे तो पाकिस्तान की बात करेगी। आखिर क्यों? जब आप सवाल करेंगे तब वो नेहरू को लेके आ जाएगी। आखिर क्यों? चलिए जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं हमारे साथ। बिल्कुल सवाल यही है कि इन सब पे लगातार राहुल गांधी आवाज उठाते हैं और उसके बाद फिर मंत्री महोदय क्यों कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं? आखिर राजनीति कौन कर रहा है? अमलेंदु जी, राजनीति कौन कर रहा है? बिल्कुल राजीव, सबको राजनीति करनी है और राजनीति नहीं करेंगे तो क्या कीर्तन करेंगे क्या? मतलब विपक्ष अगर राजनीति भी ना करे तो कीर्तन करे, मंदिर में आके घंटा बजाए। मोदी जी ने तो बना लिया अपना तीर्थ, वहाँ के पंडे बन गए सेवा तीर्थ के, सबसे बड़े महापंडे जो हैं मोदी जी हो गए अब सेवा तीर्थ के। तो उन्होंने तो चुन लिया कि राजनीति नहीं करनी है, उन्हें तो अब पंडागिरी करनी है। तो भाई क्या विपक्ष भी जो पंडागिरी करे, छोड़ दे राजनीति, तो क्या करे फिर विपक्ष? तो ये राजीव जो कहा जाता है कि सब विपक्ष राजनीति कर रहा है, भाई राजनीति करने के लिए ही विपक्ष बना है और सरकार भी राजनीति ही करती है, कोई तीसरा काम नहीं करती है। ये बात दूसरी है कि चूंकि मोदी जी के खून में व्यापार है तो उनकी सरकार अब व्यापार करती है, वरना सरकार राजनीति करने के लिए ही होती है और राजनीति जो है वो जनता का भला करने के लिए होती है। तो वो दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जनता के खिलाफ होती है, तो ये अब दूसरी बात है। लेकिन जो उपदेश दिया जाता है कि जब विपक्ष राजनीति कर रहा है, अरे भाई विपक्ष राजनीति ही करेगा और अगर विपक्ष राजनीति नहीं करेगा तो नाकारा है फिर विपक्ष, उसको राजनीति ही करनी चाहिए। आपकी एक एक कमी को उठाकर उसकी खूब अच्छे तरीके से चीरफाड़ करनी चाहिए और वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझे कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। सरकार में आने का मतलब ये नहीं है कि मोदी जी 8,000 करोड़ के हवाई जहाज से जो है वो घूमते फिरें और जनता के टैक्स पे जो है ऐश करते रहें, ये नहीं है। सरकार में आने का मतलब है कि जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा है आप उसके पक्ष में नीतियाँ बनाइए, आप उसके भलाई के लिए काम कीजिए। आप जनता के प्रतिनिधि हैं, शासक नहीं हैं। तो ये समझना है, तो विपक्ष आपको यही समझाने की कोशिश करता है जब विपक्ष राजनीति करता है। तो इसलिए राजनीति करना विपक्ष का दायित्व है, उसको राजनीति करनी चाहिए और अगर राजनीति नहीं करेगा तो विपक्ष नाकारा है। अब राजीव जी, ये कि विपक्ष जिस तरीके से पोल खोल रहा है सरकार की, सरकार क्या क्या कर रही है, अब ये सरकार तो राजीव जी खुद ही अपनी पोल खुलवा देती है। अब राजनाथ सिंह कुछ कह देते हैं, पहले आके नींबू मिर्चा डालाते हैं, उसके बाद आके यहाँ कुछ बोल देते हैं तो मालूम पड़ता है उसकी परतें उखड़ना शुरू हो जाती हैं। अब जैसा आपने शुरू में कहा कि भाई राजनाथ सिंह ने जो है वो मोदी जी की जगह ले ली है लंबी लंबी फेंकने में, तो वो लंबी लंबी फेंक रहे हैं राजनाथ सिंह जी। अब मोदी जी शायद हो सकता है थोड़ा उम्र का असर हो रहा हो, ज़्यादा लंबी नहीं फेंक पा रहे हों, तो राजनाथ सिंह जी उसमें जो थोड़ा हाथ लगा रहे हैं कि भाई थोड़ा पहले गिर जा रहा है मोदी जी का, तो पहले जो उनको थोड़ा हाथ लगाया जाए तो ज़्यादा लंबा फेंका जाए। तो राजीव जी 11 साल तो इस सरकार ने जो है ये फेंकने में ही निकाल दिए हैं। अब तक इन्होंने काम क्या किया ये तो इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, बातें ही ऐसे फेंकने की कि कौन कितनी, मतलब ये लंबी दौड़ के धावा होते हैं, पहले हुआ करती भाला फेंक होती है, प्रतियोगिता है, खेल होता है, तो उसमें दूर तक किसका भाला जाएगा, तो वही दूर तक भाला फेंकने वाले हैं सब ये। तो झूठ का भाला जो है इनका किसका कितनी दूर तक गिरेगा, तो इनकी आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो आजकल राजनाथ सिंह जी मोदी जी के बीच चल रही है कि किसका झूठ का भाला जो है ज़्यादा दूर तक पहुँचेगा, तो ये उनके अपने चल रहे हैं। लेकिन राजीव जी इन सब भाला फेंकने के बीच भी अगर इंडिगो की फ़्लाइट के मसले हो जाते हैं, गोवा में एक पब का वो मसला हो जाता है, तो आखिर जिम्मेदारी इसकी लेगा कौन? किसी की जिम्मेदारी है कि नहीं है? फिर बात यही आती है कि अगर सरकार है तो क्या सिर्फ शासन करने के लिए सरकार, जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्या? मोदी जी अपना ब्लॉग लिखकर जो बता रहे थे सेवा तीर्थ बनाने से पहले कि दायित्व है और दायित्व का पूरा करना चाहिए, दायित्व सारे नागरिकों के ही हैं। अरे नागरिकों के दायित्व थे बेचारों ने लिए एक महीना पहले टिकट, दायित्व था ना, पूरा किया, लेकिन अब उनका टिकट जो है वापस भी नहीं हो रहा, सामान भी गायब हो गया और फ्लाइट भी कैंसिल हो गई। तो ये किसका दायित्व है? सरकार का दायित्व यहाँ कुछ है कि नहीं है? आखिर डीजीसीए क्या कर रहा है? इन विमान कंपनियों को लाइसेंस उड़ने का कौन दे रहा है? एटीसी किसके अंडर में है?
तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर में, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो मोदी जी कोई जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे, या जिम्मेदारी पुतिन लेकर चले गए अपने साथ? तो हो सकता है राजीव जी जिम्मेदारियां भी सारी पुतिन लेकर चले गए हो अपने साथ। तो ये सरकार तो जो ऐसी चला करती है, तो बता रहे हैं मोदी जी ऐसी सरकार चला करती है। और उसके बाद भी राजीव जी निर्लज्जता की बेइंतहा ये है कि आप किसी कार्यक्रम में बैठकर जो लंबी लंबी हाँक रहे हैं कि हमने ये किया और हमने वो किया और हम ये करेंगे और वो करेंगे। अरे भाई, जो किया आपने वो तो सामने आ रहा है निकल के। लेकिन राजीव जी इसके बीच खतरे जो हैं और ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और ख़तरे आप देखिए, इसको अगर टेस्टिंग के तौर पर देखा जाए कि ये टेस्ट किया गया था कि किस तरीके से किया जा सकता है, तो आप मान लीजिए कल को कोई घटना हो और उस पर कोई देश भर के अंदर कोई एक आंदोलन या कोई असंतोष की लहर हो, तो अभी तक हमारा जो जिसको आप जेन ज़ी कहते हैं या जो भी है, वो सब कहाँ फूकता है? सोशल मीडिया पे। इंडिगो का ये मामला हुआ राजीव जी, लोगों को खबर कैसे हुई इस मीडिया ने तो बाद में दिखाई। पहले सोशल मीडिया पे आना शुरू हुआ, विजुअल्स आना शुरू हो गए कि देखो क्या हो रहा है। जब सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हुए, तब इस मीडिया की बाध्यता हो गई कि उसको दिखाए, तब हुआ। लेकिन राजीव जी, अगर ये जो दो मोनोपोली है एयरटेल और जियो, उसी के साथ साथ ये भी ठप्प हो जाए, तो ये गुस्सा कहाँ निकलेगा? तो ये टेस्टिंग करके देखी जा रही है कि कोई इस तरह की चीज़ हो तो अपने दो भाई जो हैं, भारती जी और अंबानी जी, इनके ज़रिए क्या सेवाएं काम में आ सकती हैं, तो उसका क्या टेस्टिंग की जा रही है कुछ? क्योंकि जिस तरीके से एक असंतोष बढ़ रहा है लगातार इस सरकार के प्रति कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है, इसकी नीतियां किस तरीके की हैं, सिर्फ अपने मित्रों का ध्यान रखती है, तो कल को क्या कोई असंतोष हो तो असंतोष को दबाने के लिए या वो असंतोष फैलने ना पाए, तो उसकी टेस्टिंग की जा रही है। चूँकि टेस्टिंग करने तो माहिर लोग हैं। सरकार में जब आए थे 2014 में, तो उससे पहले उन्होंने टेस्ट किया अन्ना के ज़रिए कि किस तरीके से मीडिया जो है और कॉर्पोरेट घराने जो हैं वो राजनीति को साथ सकते हैं। तो जब अरविंद केजरीवाल और अन्ना के जरिए कामयाब हो गए, तब फिर 2014 में वो टोटके आजमाए गए। उसके बाद ये भी सरकार में आ गए, तो ये उन्होंने आजमाए थे टोटके पहले। तो ये हो सकता है कि ये जब प्रशांत जी कहते हैं कि गुब्बारा छोड़ते हैं, तो गुब्बारा छोड़ा गया और टेस्ट करने के लिए कि कल को स्थितियाँ अगर ऐसी पैदा हों तो गुब्बारा जो है उसकी हवा कैसे निकलती है, उसको कैसे डिफ्यूज़ किया जाता है, तो उसकी सारी तैयारियां हों। तो ये भी राजीव जी एक हो सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा है या कोई षड्यंत्र है ऐसा, लेकिन जब चीज़ें होती हैं तो फिर इफ एंड बट्स उठा करते हैं। और हम लोग राजीव जी जो चीज़ें होती हैं उसका एक विश्लेषण करते हैं कि भाई अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो यही तो है। तो अगर ऐसा होगा तब क्या होगा, तो क्या इसकी कोई तैयारी भी है? बहुत सारी चीज़ें राजीव जी होती हैं राजनीति में। तो मुझे लगता है कि ये भी एक टेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि मोदी जी जिस तरीके से कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं, और शकील जी ने जैसा कि अपने कहा था कि भाई अगर ज्ञानेश कुमार को ही सारे चुनाव जितवाने हैं तो मोदी जी की क्या ज़रूरत है, अंदर भी वहाँ किसी और को भी कुछ हो सकता है। तो क्या वहाँ भी कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं? तो बहुत सारी चीज़ें राजीव जी उसके ज़रिए टेस्टिंग जो है वो चलती रहती है धीमे धीमे। चूँकि कभी कभी देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के गांव में बड़ी एक अफवाह उड़ रही थी कि साहब वो रात को ड्रोन आते हैं, वो जासूसी करते हैं। तो कहीं एक ड्रोन गिरा तो मालूम पड़ा वो किसी सरकारी विभाग का ड्रोन था। तो ऐसे ही राजीव जी ड्रोन उड़ा करते, तो ये भी कोई ड्रोन उड़ रहा होगा तलाश करने के लिए कि कहाँ क्या चल रहा है। तो हो सकता है वो ड्रोन जो है वो गिर गया, इंडिगो के मामले में पकड़ा गया, तो ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें राजीव जी चलती हैं राजनीति में। तो हो सकता है ये भी एक टेस्ट जो है वो किया जा रहा हो। जी।